Hello students, welcome to Sanal Nayar's Engineering Academy. In this video, we are going to talk about in-depth analysis of M3 paper pattern. ये जो वीडियो है, ये वीडियो 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करने वाले हैं. So part 1 will deal with the pattern. Part 2 we will see what are the important question और part 3 कि हमें क्या करना है और क्या skip करना है. Because only less time is been there. Okay. So without wasting much time, let us start with the video. Okay, so we all know students, we all know one thing that unit number one जो है, unit number one is our linear differential equation with constant coefficient. Linear differential equation with constant coefficient. Perfect. So actually this is divided into 3 chapters. 3 chapters है students. So these 3 chapters, it is been divided into. So in first chapter there are various cases. Second जो chapter है students, that is are simultaneous. एक simultaneous है और एक symmetrical है. We have simultaneous as well as what students? Symmetrical. In the same manner, जो third chapter है, that is based on application. That is based on what students? Application. Okay, fine, no worries. So in cases, what we are going to study here, in cases what we will do is, first of all we are there are various cases that we have to deal with. सबसे पहला जो method है, that will be our shortcut method. So shortcut method will be our first part. Second जो part रहेगा, that will be the general method. Third part students will be our MVP method, that is method of variation of parameter. So in chapter number 1 we have this shortcut method, we have general method as well as method of variation of parameter है. Simultaneous और ये जो symmetrical है, okay, it is only of one type and application भी एक type है. So total unit number 1 में कितने methods है? The first method here is shortcut, second जो method है general, then MVP, okay, and then yes, we have again here Cauchy's भी है, and then we have Legenders. Okay, Legenders भी equation है. So chapter number 1 we have how many methods? 5 methods. Total 5 method है. Okay, in chapter number 1. In chapter number 2 we have simultaneous, symmetrical, और जो chapter number 3 है students, that we have the application based. Perfect. So let us talk about unit number 2. Unit number 2 is based on transforms. Is based on what students? Is based on transform here. Total 2 types of transforms are there. We have to study 2 types of transforms. First जो transform है, that is our Laplace transform, and जो second transform है students, that will be our Fourier transform. Second जो transform है, that will be our Fourier transform. So this is your overview of unit number 1 and unit number 2. Okay, so for example, if you have not studied anything till now but you have to score very good marks, then also you can do it. कोई दिक्कत की बात नहीं है. Okay, if you will study some of the method but that too very properly, that too very perfectly study करना पड़ेगा. ठीक है. So shortcut method में भी सब cases है. In shortcut method also we have various sub case. Case 1 से लेके case 5 तक. Okay, so we have from case 1 till what students? We have from case 1 to case 5. Okay, so this is the overview of the M3 syllabus that will be asked in semester. ठीक है. So we start with our part 1 video. Part 1 video क्या है students? सबसे पहले तो pattern discuss करते हैं. So let us see. Okay, so as you can see on your screen, okay, as you can see on your screen, क्वेश्चन नंबर 1 को और क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा. सो इन क्वेश्चन नंबर 1 विल बी फॉर हाउ मेनी मार्क्स? 15 मार्क्स. टोटल कितने मार्क्स को रहेगा स्टूडेंट्स? 15 मार्क्स. ओके, सो व्हाट द पैटर्न इज मोस्टली, देखो क्वेश्चन नंबर 1A का जो फर्स्ट सब क्वेश्चन रहेगा, एक तो शॉर्टकट मेथड पूछा जाएगा या फिर जनरल मेथड. क्वेश्चन 1A का सेकेंड जो क्वेश्चन है, दैट विल बी बेस्ड ऑन MVP, दैट इज मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर. और जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड क्वेश्चन है, दैट इज Cauchy's और Legenders. ओके, सो इफ यू विल सी हियर,
क्वेश्चन देखो, ये पिछले बार का क्वेश्चन पेपर है, February 2023. ओके, दिस क्वेश्चन पेपर इज बिन देयर. सी, सो व्हाट इज बीन आस्क्ड हियर, क्वेश्चन नंबर 1A में कितने क्वेश्चन है? देखो 3 सब क्वेश्चन है. ये 3 सब क्वेश्चन में से आपको कौन से भी 2 करने हैं. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गेट कंफ्यूज्ड कि सर ये 3 सब क्वेश्चन दिए है, कितना सॉल्व करने का यहाँ पर लिखा हुआ है. वी हैव टू सॉल्व एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग. वी विल सॉल्व हियर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो देखो भाई, सबसे पहला जो है ये कौन सा मेथड आया, ये हो गया जनरल मेथड. And the second question is the method of variation of parameters. Third जो question है, it is based on Cauchy's. Cauchy's का question है. Fine. Okay, कितने मार्क्स को पूछा जाएगा? 10 मार्क्स के लिए. We have to solve any two. Fine. Question 1B में एक तो simultaneous differential equation पूछा जाएगा या फिर symmetrical. Okay. So question 1B जो है that will be what, that will be symmetrical. देखो भाई, आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ए बी सॉल्व करना है और बी भी सॉल्व करना है. ए में से इन ए क्वेश्चन यू कैन सॉल्व एनी 2 आउट ऑफ दिस 3. ये तीनों में से कौन से भी आप 2 सॉल्व कर सकते हो. ओके, फाइन, परफेक्ट. सो जस्ट वी विल सी दी पैटर्न, उसके बाद एनालिसिस डिस्कस करेंगे. दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. देखो फिर क्वेश्चन नंबर 2 में एक तो शॉर्टकट या फिर जनरल. ओके, फर्स्ट पॉइंट, परफेक्ट. सो कौन सा मेथड आया यहाँ पर? शॉर्टकट मेथड. सो इसका मीनिंग क्या हुआ? इफ हियर इट इज जनरल मेथड, दे हैव आस्क्ड हियर व्हिच मेथड? शॉर्टकट मेथड. ठीक है, बट इफ यू विल प्रॉपरली सी, क्वेश्चन नंबर 2B also has what? Method of variation of parameter. Means कंपल्सरी क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में कौन सा मेथड पूछा जाएगा? MVP मेथड पूछा जाएगा. सो बाय डिफॉल्ट आपके बकेट लिस्ट में MVP मेथड ये रहना ही चाहिए. Okay, this MVP method will give you how many marks? This MVP method will give you 5 marks. यहां से आपको 5 मार्क्स मिलेगा. ओके, बिकॉज MVP मेथड ये क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 2 में भी पूछा जाएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? और जो क्वेश्चन बी है, दैट इज एप्लीकेशन बेस्ड ऑफ LD. मोस्ट ऑफ द टाइम आई सजेस्ट स्टूडेंट्स नॉट टू डू दिस, और एल्स 2 से 3 क्वेश्चन ही मैं मेरे ऑफलाइन और ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बोला है टू डू इट, उसमें से ही आएगा. So the application of LD is based on the mass spring system. Okay, so let us move on to the next slide. So as you can see here, one more thing. देखो 3 क्वेश्चन है, एक शॉर्टकट, एक मेथड और एक कॉचीज ने तो लेजेंडरस. क्वेश्चन 1 में कॉचीज पूछा गया था. सो देखते हैं क्वेश्चन 2 में क्या है. यस, व्हाट वाज आस्क्ड? लेजेंडर्स वाज आस्क्ड. स्टूडेंट्स, लेजेंडर्स का इक्वेशन पूछा गया था. देखो, सो ये लेजेंडर्स का इक्वेशन पूछा गया था क्वेश्चन 2A में और कॉचीज का पूछा गया था क्वेश्चन 1A में. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ओके, और जो क्वेश्चन 2B है, दैट इज बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन बेसिस. दैट विल बी फॉर हाउ मेनी मार्क्स? दैट विल बी फॉर 5 मार्क्स. सो व्हाट आई एम टेलिंग यू, ध्यान दो. सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपका MVP मेथड होना चाहिए. आफ्टर MVP the most important one is the shortcut method. सभी के सब 5 केसेस कर लो भाई, because if you will do shortcut method it will be very useful for Cauchy's and Legendre's. Cauchy's and Legendre's में आपको shortcut method इस्तेमाल जरूर करना है. So the most important thing will be here to do MVP and shortcut method. If you can do the shortcut method, you can solve a question related to that as well as आप Cauchy's या फिर Legendre's भी easily solve कर सकते हो. easily आप solve कर सकते हो. So according to me, what you should do is, you will first of all, देखो भाई, score करना है तो सब करना पड़ेगा. बट अगर आपके पास टाइम नहीं है एंड इफ यू वांट टू पास विद ए गुड मार्क्स, आपको कम से कम ये मेथड तो जरूर करके जाना चाहिए. दैट इज MVP मेथड एंड द शॉर्टकट मेथड. स्टूडेंट्स, द शॉर्टकट मेथड इज गोइंग टू हेल्प अस इन Cauchy's एज वेल एज Legendre's. समझा? सो यूनिट नंबर 1 में ये 2 मेथड का तो पूछा ही जाएगा. एंड वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड हियर इज सिमेट्रिकल मेथड. सो ये सेकेंड चैप्टर का अगर आप सिमेट्रिकल मेथड भी किए, ग्रुपिंग एंड मल्टीप्लायर, दैट इज ऑल्सो सिंपल बेस्ट, दैट ऑल्सो यू कैन डू. सो ये 3 पार्ट तो जरूर करना है. ओके,
परफेक्ट। सो यूनिट नंबर 2 की तरफ जाते हैं। लेट अस सी व्हाट वाज आस्क्ड इन यूनिट नंबर 2। सो यूनिट नंबर 2 क्वेश्चन 3a में देखो 2 सब क्वेश्चन है। एक है लैपलास ट्रांसफॉर्म का और एक है इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म। चलो देखते हैं क्वेश्चन 3a में। यस, क्वेश्चन 3a लैपलास ट्रांसफॉर्म पूछा गया था और बी में इनवर्स लैपलास। ओके, बी में इनवर्स लैपलास पूछा गया था। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ओके, सो समटाइम्स देखो क्वेश्चन 3a 1 और 2 में भी पूछा जा सकता है और सेपरेटली ऑल्सो इट कैन बी आस्क्ड। पिछले बार सेपरेटली पूछा गया था। ओके, एंड एप्लीकेशन बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो इसमें एप्लीकेशन बेस्ड पूछा नहीं गया था, इंस्टेड ऑफ इट लैपलास और इनवर्स, बट एक फूरियर ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन जरूर रहता है। वन क्वेश्चन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म इज देयर। इफ यू विल सी क्वेश्चन नंबर 4 में हमेशा एक बात याद रखो, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन इज बीन आस्क्ड ऑफ विच ट्रांसफॉर्म? फूरियर ट्रांसफॉर्म, एंड 1 क्वेश्चन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म। क्वेश्चन 3 में ये उल्टा है। क्वेश्चन 3 में 2 क्वेश्चन रहेंगे आपके लैपलास ट्रांसफॉर्म के। कौन से ट्रांसफॉर्म के? लैपलास ट्रांसफॉर्म के। और एक क्वेश्चन रहेगा फूरियर ट्रांसफॉर्म का। So according to me, if you don't have time now, you should concentrate well on Fourier transform। देखो भाई, Fourier transform की ये 2 क्वेश्चन आना ही चाहिए। ये 2 क्वेश्चन कितने मार्क्स दिला सकते हैं आपको? 10 मार्क्स। 10 मार्क्स फ्रॉम दिस क्वेश्चन कैन बी इजीली गेटिंग। ओके, एकदम इजी है। इनवर्स फूरियर या फिर फूरियर, इसमें से 10-11 ही क्वेश्चन है और वो ही रिपीट होते हैं स्टूडेंट्स। दैट इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। लैपलास ट्रांसफॉर्म में बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज, ओके, डिवीजन प्रॉपर्टी, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज आर देयर। सो अकॉर्डिंग टू मी, आपको अगर करना है तो ये ट्रांसफॉर्म, फूरियर ट्रांसफॉर्म जरूर कीजिए। 10 से 11 क्वेश्चन, 10 से 11 या फिर 11 से 12 क्वेश्चन है, उसमें से आपको 10 मार्क्स मिल सकता है। You should know which question is important there. Okay, so according to me, if you have less amount of time, you should concentrate on which method? कौन से मेथड में concentrate करो? MVP, shortcut, symmetrical, Fourier transform। बस यहाँ पर लिखता हूं मैं Fourier transform। Easily you can score till 20 marks, 20 मार्क्स या 25 मार्क्स तक आप स्कोर कर सकते हो आराम से, if you will do it very properly। Are you understanding this analysis students? So it's up to you कि भाई आपका वीकनेस क्या, आपका स्ट्रेंथ क्या है। अगर आपने लैपलास ट्रांसफॉर्म किया तो भाई 2 क्वेश्चन लैपलास ट्रांसफॉर्म के करो अटेम्प्ट। और आपको फूरियर ट्रांसफॉर्म नहीं जम रहा है, डोंट डू दैट। इफ योर फूरियर ट्रांसफॉर्म इज वेरी परफेक्ट, डू दैट फूरियर ट्रांसफॉर्म। लैपलास ट्रांसफॉर्म की तरफ देखो भी मत। Okay, are you understanding? Perfect. So this was the part 1 of the video student, part 1 of the video. So now let us analyze the paper of computer। क्योंकि देखो सबसे पहले M3 INSEM कंप्यूटर का ही होता है। So if we can analyze it very properly, we can analyze for mechanical also। So इसमें पूरा हम एनालिस नहीं करेंगे, मेन पॉइंट देखो। मेन पॉइंट क्वेश्चन 1A-B में मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है कंप्यूटर डिपार्टमेंट वालों को, और क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड में भी MVP मेथड है। बट इफ यू विल सी, ये था पिछले साल का पेपर। ओके, ये था 2023 का पेपर और ये अभी का लेटेस्ट पेपर है, जो फर्स्ट पेपर जो कंप्यूटर का था 2024 का ये पेपर है। इफ यू विल सी हियर क्वेश्चन देखो, डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9y इक्वल टू ई रेज टू 3x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन पिछले बार पूछा गया था एंड सेम वॉज रिपीटेड हियर। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था स्टूडेंट्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कितने मार्क्स को पूछा गया था? 5 मार्क्स के लिए। सो 5 मार्क्स रिपीटेड क्वेश्चन था। बाकी कौन सा भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, पैटर्न लगभग सेम है। ओके, बट क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ओके, मींस फ्रेश दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड e raised to 3x upon x square, आप देख ही सकते हो। ओके, सिमिलरली इफ यू विल सी हियर क्वेश्चन 3 भी देखो, सॉल्व द इंटीग्रल इक्वेशन f of x sin lambda x dx। दिस क्वेश्चन ऑब्वियसली दिस इज 2023 क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन
और जो लेटेस्ट वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 4C, देखो भाई इट इज ऑल्सो सेम, वो भी क्या है, सेम है, वो भी क्या है, सेम टू सेम ही पूछा गया था। मीन्स अगेन फॉर कंप्यूटर इट वाज आस्क्ड फॉर हाउ मेनी मार्क्स, 5 मार्क्स। देखो भाई 5 मार्क्स का एमवीपी मेथड कंप्यूटर वालों को पूछा गया था और 5 मार्क्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म पूछा गया था। सो जिसने भी अगर ये क्वेश्चन पेपर पिछले साल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया रहेगा फॉर कंप्यूटर डिपार्टमेंट, 10 मार्क्स तो आराम से मिल करेंगे। दिस इज द पावर ऑफ सॉल्विंग PYQ, नेवर अंडर एस्टिमेट। PYQ सॉल्व करना है, देखो भाई SPPU है, अभी ऐसा हो सकता है कि कौन सा भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट आई एम टेलिंग यू दैट इट कैन बी आस्क्ड। ओके, सो आपको करना ही है, आपको जरूर करना है स्टूडेंट्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो जो सेकेंड पार्ट में जो डिस्कस किया हो, सेकेंड पार्ट में व्हाट यू स्टडीड दैट वी हैव टू डू PYQ क्वेश्चन। ये सेकेंड पार्ट की वीडियो से आप क्या सीखे हो कि भाई PYQ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर वालों ने अगर किया रहता PYQ, सो 10 मार्क्स उनके हाथ में थे। हाउ मेनी मार्क्स स्टूडेंट्स? 10 मार्क्स वाज इन देयर हैंड। now third part, the third part is again important. So generally what happens is, what I did is I have compared computer and mechanical paper also. So computer और mechanical paper में what I have observed is that ये था computer का paper students, this was 2023 paper. Okay, so मैं क्या बोला आपको, दैट फर्स्ट पेपर हमेशा M3 का ही रहता है कंप्यूटर का और लास्ट मैकेनिकल वालों का रहता है। सो इफ यू विल सी क्वेश्चन 3B देखो, फूरियर ट्रांसफॉर्म, दिस एंड दिस क्वेश्चन वाज व्हाट गाइस, क्या था भाई, सेम ही तो था। मीन्स द कंप्यूटर का फर्स्ट पेपर था, अगर मैकेनिकल बंदों ने ये पेपर भी सॉल्व किया तो 5 मार्क्स तो भी कंफर्म थे उनके। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज, अगर आपको क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं, इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग विच क्वेश्चन टू डू, यू कैन रेफर, फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान दो, सबसे पहले मैकेनिकल का PYQ सॉल्व करो, आफ्टर दैट ट्राई सॉल्विंग कंप्यूटर PYQ। if you want the whole PYQ of mechanical, comment in the comment section. I will try to solve most of the question from the question paper of mechanical. अगर आपको चाहिए तो आप comment कर सकते हो। So in this way what we can do is, in this way we can study the M3. सबसे पहले तो बेसिक फिक्स करो भाई, बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, फिक्स दी बेसिक्स हियर। ओके, आफ्टर बेसिक्स जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लग रहे हैं वो करो, एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग PYQ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने एनालिसिस किए, देखो इवन इफ PYQ इज नॉट आस्क्ड, सेम टू सेम क्वेश्चन अगर पूछा नहीं गया है बट सिमिलर क्वेश्चन तो पूछा जाएगा, सिमिलर क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड स्टूडेंट्स। ओके, so hope that you have gained some knowledge by seeing this video. If you have liked it, please subscribe to my channel और like तो जरूर करना स्टूडेंट्स। ओके, so best of luck students and thank you so much.